Hello my dear friends. In previous lecture we discussed regarding the optical activity of organic compounds by identifying chiral carbon and achiral carbon. You know very well chiral means asymmetric carbon, achiral means symmetric carbon. If in any organic compound chiral carbon is present, then it is optically inactive, and that compound and its mirror image are not superimposable. If compound is optically inactive, in spite of that compound and its mirror image are not superimposable, at that time we have to rotate that compound at 180 degree, and at 180 degree if it is not superimposable, then we can say it is optically active. If it is superimposable, then we can say optically inactive. Okay, see here in this case, yesterday we discussed this compound propane 2-ol and its mirror image are non-superimposable, but by rotating 180 degree, then this both are superimposable. And if you don't know all these three things, then see here, this carbon is not chiral carbon because two valencies are satisfied by methyl group. Then directly you can say this compound is optically inactive, and its a mirror image by rotating 180 degree, it is superimposable with the compound propane 2-ol. Now in today's lecture we have to discuss regarding enantiomers. This topic is not that much difficult, very easy topic. Let us take one example in which chiral carbon is present, that is butane 2-ol, and in butane 2-ol, CH3CH2, CHOH and CH3. This carbon is a chiral carbon. So one thing is clear, it is optically active. So see here, butane 2-ol and it's a mirror image. This figure you have to draw in enantiomer. Here it is written optically active compounds that are not superimposable on their mirror images. यहाँ एक डेंजर पॉइंट ये है कि कभी कभी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है तो भी उस कंपाउंड के ऊपर उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होती। तो एक टॉपिक एक्स्ट्रा है उसमें कि उस मिरर इमेज को 180 डिग्री पे रोटेशन करवाओ तो ये ग्रुप ऊपर चला जाएगा, ये ग्रुप यहाँ नीचे आ जाएगा, ये रहा, बाकी का सेम रहेगा। ठीक है, तो अब देखना है कि ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज होता है कि नहीं होता है। नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सही मायने में ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं। अगर ये होता कि ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल है और ये जो है वो सुपर इम्पोज हो जाता ब्यूटेन 2-ol के ऊपर, तो हम तुरंत ही बोल देते कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन दोनों में से E also non-superimposable on D, F also not superimposable on D. So finally we can say this compound is optically active. तो जैसे हम मिरर के सामने खड़े रहते हैं, ठीक है, तो हम जो है वो रियल है, हमारी मिरर इमेज जो है वो रियल नहीं है, सही मायने में वो इमेज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं है। बात को ध्यान से सुनना, हम एग्जिस्ट है, हमारी मिरर इमेज एग्जिस्ट नहीं है, वो हमारा भ्रम है। ठीक है, लेकिन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इफ कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, then that compound and its mirror image both are exist in that compound, and both are called the isomers to each other, and that isomers are called enantiomers. See, butane 2-ol has 4 different groups, you know very well.
It has a tetrahedral carbon, that is the chiral carbon. That carbon is chiral carbon. One is the CH3 group, another is the CH3CH2 group, third one is the OH group, and one is the hydrogen group. ठीक है, तो that compound and its a mirror image which are non-superimposable with each other, then they are called enantiomers to each other. They are enantiomers to each other. Listen me carefully. D and E both are exist. Both have their own characteristics. D also exists in butane 2-ol, E also exists in butane 2-ol. दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग होती है, तो उन दोनों को एनांशियोमर्स बोला जाता है. रियलिटी में हमारी लाइफ में ऐसा नहीं होता है. हम भी एग्जिस्ट है और हमारी मिरर इमेज भी एग्जिस्ट है. ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा होता है, या तो कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसमें ये हो रहा है. तो ये दो आइसोमर्स है, ये डी एंड ई, उसमें से एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, एक लेवोरोटेटरी होता है. अगर ये पहला वाला लेवोरोटेटरी होता है तो दूसरा वाला डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है. अब क्वेश्चन ये अगर आए आपको कि ये लेवोडेक्स्ट्रो क्या है, तो आगे वाला कंसेप्ट रिफर कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा. डेक्स्ट्रो आइसोमर कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइक राइट साइड, लेवो रोटेट लेफ्ट साइड. ओके. अगर बाय स्पेसिफिक मेथड हम ये ब्यूटेन 2-ol एंड इट्स मिरर इमेज ब्यूटेन 2-ol दोनों को उस कंपाउंड में से सेपरेट कर ले बाय स्पेसिफिक मेथड, और बारी बारी उनको पोलारीमीटर में रखे, तो दोनों में से एक जो होगा वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, दूसरा जो होगा वो लेवोरोटेटरी होगा. ठीक है, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दूसरा लेवोरोटेटरी, ध्यान में रखिएगा. और ये दोनों एग्जिस्ट है और दोनों को एक दूसरे का एनांशियोमर्स कहा जाता है. तो ये एनांशियोमर्स की डेफिनेशन हुई. मैं फिर से बोलता हूँ. ठीक है, इफ कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, देन दैट कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज both are called enantiomers to each other, and out of both enantiomers, one isomer is dextrorotatory and another isomer is levorotatory, and vice versa. If first one is levorotatory, then second one is dextrorotatory. When you write in book, ये फिगर आपको ड्रॉ नहीं करनी, उसको स्किप कर दीजिए. 3D में आपको दिखाया गया है, जैसे वेज बॉन्ड, डैश बॉन्ड, कुछ ग्रुप आपको आपके सामने आ रहे हैं, कुछ बुक ये स्क्रीन के पीछे जा रहे हैं. दो ग्रुप जो है विद इन द स्क्रीन है, जैसे कि ये जो है आपके सामने है, ये पीछे वाला है. ठीक है, तो ये समझने की ज़रूरत नहीं है, इसको ड्रॉ भी मत करना. अब मैं टॉपिक आता हूँ डायास्टीरियोमर्स. हालांकि डायास्टीरियोमर्स की हमारी जो SN1 SN2 में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिव में आता है डायास्टीरियोमर्स. तो डायास्टीरियोमर्स किसको बोलते हैं? इफ कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, द कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव that are non-mirror images of each other. They are called diastereomers. देख लीजिए, ये एक पेयर दिखाई है डायास्टीरियोमर्स की. ये एग्जाम्पल है, ये वाला. आप IUPSC नाम देने की कोशिश करना है इसका. The optically active compounds that are non-mirror images, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, उसको बोलते हैं डायास्टीरियोमर्स. ये दो कंपाउंड को आप देख लीजिए, यहाँ पे मिरर रख लीजिए. अब देख लो, ये फर्स्ट वाला और ये वाला दोनों मिरर इमेजेस है. दोनों कंपाउंड तो
एक ही है, आइसोमर्स है कंपाउंड के, लेकिन मिरर इमेज नहीं है। इसमें जो है chiral carbon present, in this chiral carbon is present, लेकिन जो कंपाउंड मैंने साइड में ड्रॉ किया है वो उसकी मिरर इमेज नहीं है। आप ड्रॉ कर सकते हो मिरर इमेज भी, तो अगर मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे और नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगी और ऑप्टिकली एक्टिव है तो हम लोग बोल सकते हैं एनांशियोमर। जैसे कि ये डी और ये डी, ये दोनों मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, तो ये पहला वाला डी जो है और दूसरा वाला डी जो है उस ये दोनों मिरर इमेज है, तो उसको हम बोलेंगे एनांशियोमर्स टू ईच अदर। अगर मैं ऐसे करता हूं, एक डी ऐसे और एक डी ऐसे, ये दोनों डी मिरर इमेज नहीं है, फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव है, फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इस कंडीशन में हमें सुपर इम्पोसिबल नॉन सुपर इम्पोसिबल ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं सोचना है, हमें सिर्फ ये बोलना है कि ये दोनों आपस में डायास्टीरियोमर्स। और डायास्टीरियोमर्स की बात तब आती है जब कोई कंपाउंड में, इसमें एनांशियोमर्स नहीं है ऐसी बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनांशियोमर्स मैंने ड्रॉ नहीं किए। देखिए ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी आपके सामने, COOH, उसकी मिरर इमेज आप ड्रॉ करिए रफ बुक में तो पूरा डायास्टीरियो आइसोमर्स समझ में आ जाएगा। मुझे SN1 में डायास्टीरियो आइसोमर्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी समझा रहा हूँ। देखिए COOH, ये यहाँ पे दो ग्रुप है, यहाँ पे COOH है, ये OH, ये H, ये Br और ये H, यहाँ पे मिरर लगा दो तो COOH, ये दो कार्बन COOH, यहाँ पे H, सामने OH एंड Br। तो ये देखिए ये A and B both are mirror images to each other and also non superimposable to each other, so both are enantiomers to each other। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये इसलिए नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें कि मुझे समझाना है डायास्टीरियो आइसोमर्स, एनांशियोमर तो इसमें है ही, वो नहीं ड्रॉ करना है, हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो ये दोनों जो है वो डायास्टीरियो आइसोमर्स है, और यू कैन से द डायास्टीरियोमर्स, तो नॉन मिरर इमेजेस टू ईच अदर, ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसा तब होता है जब किसी कंपाउंड में दो किराल कार्बन एटम, इसको आप ऐसे ड्रॉ करें तो इसमें 4 कार्बन है, COOH, ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये फोर्थ वो भी COOH, ये जो सेकंड नंबर कार्बन है वहाँ एक H है, थर्ड नंबर में भी H है, एक के ऊपर OH है और एक के ऊपर Br है। ये कंपाउंड अगर सीधा हम ड्रॉ करना चाहिए 2D में, 2 डायमेंशन में, तो ऐसे होगा। तो ये कार्बन देखिए किराल कार्बन है, ये कार्बन भी किराल कार्बन है, तो यहाँ पे दो स्टीरियो सेंटर है, 2 किराल कार्बन आर प्रेजेंट। तो डायास्टीरियो आइसोमर्स की बात तब आती है जब 2 किराल कार्बन सेंटर हो। एक ही एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, और मुझे ज़्यादा इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेसो कंपाउंड्स। देखिए पहले डेफिनेशन, द compounds have two similar chiral centers, so optically inactive due to presence of plane of symmetry, but has at least one optically active diastereomer, are called mesocompounds। ये देख लीजिए, ये दोनों मेसो कंपाउंड्स, टेंशन मत लीजिए, मैं समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ। अब पहले कंपाउंड को देखिए, डायास्टीरियो और इसमें क्या फर्क है।
2 किराल कार्बन एटम डायस्टीरियोमर्स में भी है और यहाँ पे भी है। इसमें जो 2 कंपाउंड है, यहाँ पे आप अगर मिरर लगा दो, ये रेड कलर की लाइन, तो क्या ये टार्टरिक एसिड, इस टार्टरिक एसिड की मिरर इमेज है? नहीं है। देखिए ये ए और ये बी, बी इज नॉट मिरर इमेज ऑफ ए। फिर से आप डेफिनेशन को देखिए, कंपाउंड हैव 2 किराल सेंटर, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा पहला किराल सेंटर, दूसरा, मतलब कि ये 2 कार्बन जो है जंक्शन वाले, ये और ये, यहाँ पे ये और ये, दे आर द किराल कार्बन्स। They are not mirror images to each other. ध्यान से देखिए, they are not mirror images to each other. मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि द मेसो कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स which are not mirror images to each other. और अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये बात भी हम 12th स्टैंडर्ड में इतना यूज नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी थियोरी में हम मेसो कंपाउंड का यूज नहीं करेंगे, लेकिन कहीं पे भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपका थोड़ा थोड़ा इसमें कॉम्पिटिटिव पार्ट भी हो रहा है, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। मेसो कंपाउंड्स, तो ये देखिए दोनों मिरर इमेज नहीं है, इसको मैं ए बोलूं, इसको मैं बी बोलूं, मिरर इमेज नहीं है। लेकिन अगर कोई एक में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब कि आप कंपाउंड को हॉरिजॉन्टली एक जगह से 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ये ग्रीन लाइन देखो, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। अगर ऊपर वाला पार्ट जो है वो नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज, देखिए ये वाला पार्ट इसका मिरर इमेज है, ऊपर वाला नीचे का मिरर इमेज है, तो जिस हॉरिजॉन्टल लाइन से एक ही कंपाउंड के 2 पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाते हैं, तब इसको बोलते हैं मेसो कंपाउंड। और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो जहां पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये अब सामने वाले कंपाउंड में आइए, ये मिरर इमेज तो है ही नहीं। जैसे यहां पे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन से 2 इक्वल पार्ट किए, यहां भी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन करिए, ये कर दी। अब देखिए ऊपर वाला पार्ट जो है वो नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज नहीं है, या नीचे वाला पार्ट ऊपर का मिरर इमेज नहीं, मतलब कि यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों जो कंपाउंड है उसको हम मेसो कंपाउंड बोलेंगे। इसमें से एक कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, जो ये वाला है वो इनएक्टिव है क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और एक जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ लिखा है वो ऑप्टिकली एक्टिव, यहाँ पे आप लिख लेना ये ऑप्टिकली इनएक्टिव यहाँ पे। अब दोनों को कंपेयर करते हैं कि डायास्टीरियो आइसोमर्स में क्या था। डायास्टीरियो आइसोमर्स जो है उसमें 2 सेंटर थे, सिर्फ इतना ही था कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं थे। लेकिन अगर यहां से मैं इक्वल 2 पार्ट करता हूं, इसका यहां से इक्वल 2 पार्ट करता हूं, तो दोनों में से किसी में आपको
एक दूसरे का मिरर इमेज, एक ही कंपाउंड का दो पार्ट, एक पार्ट दूसरे का मिरर इमेज, ऐसा किसी भी कंपाउंड में नहीं दिखाई देता है। तो ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन दोनों मिरर इमेज नहीं है, इसलिए हम एनांशियोमर्स यूज नहीं करेंगे, हम डायास्टीरियोमर्स यूज करेंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोसिबल होते तो हम इसके लिए यूज करते एनांशियोमर्स। मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया है। मेसो कंपाउंड और डायास्टीरियोमर, तो आपको तीन चीजें समझनी है। एनांशियोमर्स मीन्स मिरर इमेजेस टू ईच अदर, नॉन सुपर इम्पोसिबल, ऑप्टिकली एक्टिव। डायास्टीरियोमर्स optically active, non-mirror images to each other, non-superimposable, optically active, and plane of symmetry not present. ठीक है। डायास्टीरियोमर्स की जब बात आती है तो उसमें दो किराल सेंटर होते हैं। मेसो कंपाउंड में भी दो किराल सेंटर होते हैं। दो कंपाउंड हम जो लेते हैं दे आर नॉट मिरर इमेजेस टू ईच अदर। ठीक है। उसमें कहीं एक कंपाउंड, नॉट ऑलवेज दिस साइड और दैट साइड, लेफ्ट राइट, ऐसा ऐसा कोई कंफर्म नहीं होता है। दोनों में से एक कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। तो जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट का जो मिरर इमेज बनता है, तो यहाँ पे लिखने ना ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये किसी भी साइड हो सकता है। और कभी कभी दोनों कंपाउंड में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सब रेयर, ऐसा ऐसा तो आपको रेयर केस में दिखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि एटलीस्ट वन ऑप्टिकली एक्टिव डायास्टीरियोमर्स इज प्रेजेंट। ठीक है। तो बात आती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री किसको बोलते हैं? तो वो तो मैंने ऊपर समझा दिया कि कोई भी कंपाउंड अगर मेसो हो, ठीक है, तो इफ वन प्लेन इज ड्रॉन, दिस इज ए प्लेन and that plane divide the molecule into two equal halves, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब एक चीज आती है जिसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है हमारे चैप्टर में, फिर भी मैं अब बेसिक स्टीरियो केमिस्ट्री आपको समझा ही देता हूं। चलिए, लास्ट वर्ड इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल में आप एक सेंटर पकड़ लो और उस सेंटर से उसको हर एक डायरेक्शन में घुमाओ तो मॉलिक्यूल में कोई फर्क नहीं आएगा, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है। आप एक डिश ले लो, उसका सेंटर पकड़ लो और उसको घुमाओ तो डिश के स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जहां पे आप अपनी फिंगर रखते हो और डिश को घुमाते हो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। साइंटिफिकली अगर हम देखना चाहें तो द पॉइंट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल, straight line are drawn, then at equal distance and in opposite direction identical groups are present, is known as the center of symmetry, और उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ इनवर्सन। सेंटर ऑफ इनवर्सन, देखिए ये एक सेंटर है, यहाँ से ऊपर हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो एक सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में भी आइडेंटिकल ग्रुप है, ऊपर नीचे भी आइडेंटिकल ग्रुप है, तो इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब इसको किसी भी तरह घुमाओ, जैसे कि मैं मीथेन ले लूं, ये मीथेन ही था, ठीक है, तो कार्बन से इक्वल डिस्टेंस पे 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट। अब इसको आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट घुमाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉलिक्यूल सेम ही दिखेगा। एट इक्वल डिस्टेंस आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। तो इस कंडीशन में मैं ये जो कार्बन है मैं उसको बोलूंगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS। ठीक है।
और इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन। अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वर्जन सिमेट्री मुझे लेनी है SN1 रिएक्शन में, इन्वर्जन। ठीक है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये ABC। अब इसको मैं ऐसे बोलूं, कार्बन, हाइड्रोजन, ABC, इसको बोलते हैं, ये कार्बन से लेके यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में ABC है तो सामने राइट साइड में ABC है, यहाँ राइट साइड में हाइड्रोजन है तो यहाँ लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है। तो इस कंडीशन में उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन, और इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए इस कंपाउंड में भी सेमी ग्रुप है, इस कंपाउंड में भी सेमी ग्रुप है, लेकिन फर्क क्या है, डायरेक्शन ऑपोजिट। यहाँ हाइड्रोजन जो है वो राइट में है तो यहाँ हाइड्रोजन लेफ्ट में है, यहाँ ABC जो है लेफ्ट में है तो यहाँ ABC राइट में। तो इसको हम बोलेंगे कि यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए आपको कोई फिगर ड्रॉ नहीं करनी है, वो बहुत इजी टॉपिक है। सिर्फ एक वर्ड के ऊपर पिन पॉइंट करिएगा, सेंटर ऑफ इन्वर्सन। डेफिनेशन एक बार समझने की कोशिश करते हैं। द पॉइंट ऑफ सेंटर, ये कार्बन, थ्रू विच इफ स्ट्रेट लाइन आर ड्रॉन। चलिए मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ। At equal distance in opposite direction identical groups are present। यहाँ पे हाइड्रोजन रखता हूँ, यहाँ ABC रखता हूँ। तो अब चलो मैं इसको 180 डिग्री पे घुमा देता हूँ। तो ABC, तो ABC इक्वल डिस्टेंस पे है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई। ग्रुप वही आइडेंटिकल है, यहाँ पे भी ABC है तो यहाँ पे भी ABC। तो दैट सेंटर, तो इस कार्बन को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ इन्वर्सन। ठीक है, आप इसको ड्रॉ करना है तो कर लेना, आपकी मर्जी, कंपलसरी नहीं है, सिर्फ ये डेफिनेशन समझ में आ जानी चाहिए। आज का लेक्चर मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ। अब फिर से, ठीक है, आज पूरा दिन ये ऑल टर्म्स दैट आई एक्सप्लेन यू, फर्स्ट वन PPL, second one optical activity, third one chirality, fourth one chiral center, fifth one is the enantiomers, sixth one is the diastereomers, seventh one is the mesocompound, eighth one is the plane of symmetry, and ninth one is the center of symmetry। और जब आप बुक में क्वेश्चन लिखे तो ये फिगर नहीं ड्रॉ करनी है, फिर से एक बार सुन लीजिएगा, जब आप समझाए तब। दूसरा, बाकी सब फिगर ड्रॉ करनी है आपको, सब, ये नहीं ड्रॉ करनी है। फिर बाकी सब में एग्जाम्पल, सेंटर ऑफ सिमेट्री में कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है तो मैंने जो ABC वाला लिखा था ये, वो आप लिख सकते हो, H और सामने। ठीक है, तो कार्बन जो है वो सेंटर ऑफ इन्वर्सन है। आ गया समझ में? माय डियर फ्रेंड्स, हियर वी आर कंप्लीटिंग द बेसिक टर्मिनोलॉजीज। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप एलिजिबल हो स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। अगर इतना आप जान सकते हो कंपाउंड में तो अब आप स्टीरियो केमिस्ट्री डिटेल में पढ़ सकते हो। अब कोई नया नहीं है स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में थियरी में बार बार यही पूछेंगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसमें ये दोनों एनांशियोमर्स है, ये दोनों डायस्टीरियो आइसोमर्स है, ये दोनों मेसो कंपाउंड्स है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन दिस। ओके, तो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आप नहीं बता सकते कि हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन इट। तो ये क्वेश्चन आप लिख के रखिएगा। मैंने बोला था आपको कि मुझे लेना है
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहले मुझे ये समझाना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें ज़रूरत होती है न्यूक्लियोफाइल की। तो मुझे आपको ये भी बताना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स आर देयर। तो आज मैं आपको थोड़ा रिलैक्सेशन इसलिए दे रहा हूँ कि आप ठीक से स्टीरियोकेमिस्ट्री की हर एक टर्म ठीक तरह से पढ़ ले। तो कल से हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चालू करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।